السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، سردیوں کی مناسبت سے آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں لنڈے بازار۔ آرام سے بس آدھو کی کھان جی جو میلے پونگڑا چلن دیا 100 روپیہ 100 اپنا مال بیچو، ہمارے طرف نہیں آؤ۔ 100 روپیہ 100 روپیہ صحیح بول رہے۔ سردی 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 500 روپے میں سردی آپ سے دور رہنے پہ مجبور۔ ایڈی سردی لگتی سی تو کرونی سی ہونا یار، وہ سردی کا توڑ بیچ رہا ہے، خود نہیں سردی لگ رہی اس یار کوٹ بیچ رہا 100 روپیہ 100 روپیہ 300 روپے مارک سسپینسر بھی ہے، بوش بھی ہے اور گواچی بھی ہے۔ خان ساریاں گلنا چھاڑ، اے تینوں مارک سپینسر کہنا کنے سکھایا ہے؟ تم کیا اندھا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو نہیں دیا ہوا کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ شکر تیرے کو ہیرڈ بچ گیا، ہیرڈ تھا نہیں پوچھے گا یہ مارک سسپینسر ہے۔ کتنے مارک سپینسر ہے؟ یا میرا مالک کو خدا لینا ہے نہیں ہے، جھگڑا کرتی ہے بس۔ پینٹے ڈریس پینٹے جین پینٹے جین پینٹے سب خدا دا واسطہ دے جھوٹ بول کے سودا نہ ویچو۔ مارک سپینسن گوچی، پچھلی باری میں تھوڑے کو سویٹر لے گیا سا گوچی دا کیا سی تسی، وہ میں گھر جا کے سٹکر لا کے ویکھیا تھلے نیشنل دا نکلا ہے۔ یہ نیشنل کا کون سا؟ میرا بھائی یہ غلط بات کرتا ہے، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے سے پہلے گردن اتار دے گا۔ سویٹر خریدیا پکا خریدیا تو نیشنل دا؟ ہمارے پاس تو تمہارا سائز ہی نہیں ہوتا، تم نے ہم سے کہاں سے خریدا ہے؟ یہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ آ کے تو شاپنگ کرتا ہے۔ یہ آپ نے چہرہ کیوں ڈانپا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بات ایکچولی یہ ہے نا کہ مجھے ذرا چھوڑ دو کیوں بتائیں نا؟ فلم سٹار ہے، فلم سٹار۔ اچھا، یہ بھی بہت بڑا کمپلیکس ہے ہمارے ہاں، بڑے بڑے لوگوں میں وہ خریدنے جاتے ہیں لنڈا چہرہ چھپا کے جاتے ہیں۔ اور میرا بھائی بڑا بڑا لوگ آتا ہے ہمارے پاس خریدنے کے لیے۔ رہنے دیں، پہچان لیا، وہ بتا دیا آپ کا، شو ہو رہی ہے، آپ کا تعارف کروا دیا۔ فلم سٹار ارم طاہر ہے۔ اچھا، آپ شاپنگ کے لیے آئی ہیں لنڈن؟ نہیں جنید صاحب، میں یہاں وہ برانڈڈ سوٹ لینے آئی تھی۔ اچھا، اچانک میری نظر پڑی تو میں نے کہا ذرا نظر ماری جائے۔ ایسا مت کرو، ہمارا گاہک خراب ہوتا ہے، بولتی ہے کہ ادھر سے لیتی۔ یہ ابھی جو بوٹ پہنا ہوا ہے یہ ہمارا بڑا بھائی سمندر خان، اچھا، اس کے دکان سے خریدی تھا۔ اور یہ میرے کو شال لی ہوئی ہے، وہ اس سے چھوٹے بھائی دریا خان سے لی ہوئی ہے۔ وہ دریا خان ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ ہمارا سالہ ہے۔ اچھا، وہ تمہارا جو بھابھی لگتے ہیں اس کا بھائی ہے وہ۔ اچھا، سامان گھٹ بچے نے رولا زیادہ 100 روپیہ 100 روپیہ۔ پھر کی ہوتا باؤ جی؟ ملکو نے گلوکار میری پینٹ پا کے انہیں گانے گائے ہیں۔ اچھا، بھائی ہمیں کیا بات بتاتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے وہ اجاز نمان، اس کو تو سجدہ بھی بہت لنڈا۔ وہ لے کے جاتی ہے ہمارے سے سویٹر، ابھی سب کو خریدا۔ اس نے فلم سٹار ریشم بھی آئی تھا، اچھا، ادھر ہماری سویٹر لے کے گیا، ہم نے کہا 100 روپیہ، اس نے ہمیں 500 روپیہ دیا۔ بڑا بڑا منسٹر آتی ہے، بڑا بڑا آفیسر آتی ہے ہمارا کو جرسی لینے کے لیے 100 روپے میں، تو کیا ہے قیمت اس کا بتاؤ ذرا؟ اور سارا برانڈڈ مال رکھا ہوا ہے۔ یار ایک منٹ صبر تک کر، ایک منٹ باجی 500 روپے دے جی۔ پچھلے دیڑ ایک بندہ میرے کو ایک کوٹ کھین گئے، سونے دا بٹن نکلے۔ یہ دیکھا، چوڑا اس کو چوڑا، پیچھے ہٹو، یہ دیکھو 100 روپیہ، تم پہ اچھا بھی لگے گا، دیکھو تو صحیح۔ یار یہ تو جینٹ سویٹر ہے۔ وہ جینٹس ہے تو پھر کیا اس کا کون سا منہ سے نکل آئے گا پہن کے؟ پہن دو 100 روپیہ 100 روپیہ۔ خان ادھر ہو کسی اور بھی چیز جو ایک منٹ لو، ابھی بھی دیکھو 500 روپیہ 500 روپیہ۔ مجھے 500 کا، ان کو 100 روپے کا۔ وہ تو 100 روپیہ ہی ان کے پاس، تم تو فلم سٹار ہے، ہم گاہک دیکھ کے قیمت بتاتے ہیں، آپ نے تو لینا نہیں ہے۔ وہ اتنے کا تو تیرا ٹوپی نہیں بنے گا۔ 100 روپیہ 100 روپیہ۔ جدو بھن ہے ہی میرے ورگی تے مینوں ویچن دے سودا۔ بھن آ تیرے خاوند نوں ایڈی سونی لگے گی نا پینٹ، بھاویں اے نال نیلی شرٹ پا لو، بھاویں چٹی پا لو، جڑے مرضی پا لو شرٹ، اے نال ہر شرٹ ججے گی۔ کنے دی؟ اے 200 روپے دی۔ 200 دی؟ ہاں جی، چھوڑو 200 کا، یہ 100 روپے کا یہ خریدو۔ اور ٹھہر جا خان، وہ پینٹ خریدن آئے نے سویٹر نال لتاں تے بیٹھ رہے۔
जो अपने काम करो, हम इधर बहन ले लो 100 रुपया 100 रुपया। यार तुम मार की थी बेटे। यार तुम अपने काम देखो, मेरे से क्यों लड़ते? 100 रुपया 100 रुपये का। यार देखो कितना प्यारा लगेगा, देखो तो सही। ठीक है, देखो तो सही मेरे पास कितना है अच्छा ना, लग रहा मेरे पास है। है। तुम तो चिट्टा चिट्टा है, सारे स्वेटर अच्छे लगेगा तुमको। मेरे पास है यार, ये वाला ये वाला नहीं, अपना है मेरे पास। लंडे से लिया था। हाँ, तो तुम कोई ब्रांडेड दे रहा है? गुआची का, गुआची का। उधर कह रहे थे तुम मार्क्स स्पेंसर का है, यही वो स्वेटर। एक तरफ मार्क्स स्पेंसर लिखा हुआ, दूसरी तरफ गुआची लिखा हुआ। बाजी तुसा एक कोट घिन गिनो, शहजादा चार्ल्स ने अपनी शादी ते पाया ही। वह ना खरीदना, उसको तलाक भी तो हो गया था। ओए मैं तेरे मामले से बोले ना, उधर जाके अपना दुकान- तमीज से गाल खराब है तो कुआ खा। अपनी दुकान पे रहो, अपनी दुकान इधर पे रहो। हमारे साथ ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश नहीं यार करो। 500 तो बचे थे, तू 100 रुपया 100 रुपया। आराम से आराम से। तेरे सब रात को अपनी बकरियां को स्वेटर पवा दे दे, कड्डी को बेचना आवेंदे। 100 रुपया 100 रुपया। देखो देखो अच्छा स्वेटर देखो। वो एक मिनट ठहरो। 100 रुपया मुझे खड़े तो हो लेने दो। इस तरह हेलो, 34 पूरी 34। यार खुद आ कर हमने 34 कहाँ से आ गई? उसकी 11 इंच कमर नहीं होनी। ओ बाबूजी, कमर 34 नहीं की, मेरी पैंट 34 की है ना, मैंने बेचनी है। ये बाबू आपको पूरी है। एक मिनट, मैं स्वेटर लेने आया हूँ। इधर आओ शहबाज, ये देखो तुम्हारे साइज का ये वाला कलर तुम पे अच्छा लगेगा। अब बात सुनो, बात सुनो। ऑफिसर इधर आओ, लगेगा, इधर आओ, ऑफिसर। इधर आओ, इधर स्वेटर तो इधर सारे आओ, बराबर जो आप मेरे पास आओ, इधर आए, छोड़ दे सर, इधर आए। जी सर। चलेंगे, ये लपेट ले, चल ये लपेट ले, बिल्कुल क्या ठंड नहीं करती है? लगेगी। उसको लपेट जुकाम ले। हुई ये है। लपेट लो यार, जाओ। छोड़ दो यार, बस कर दो खुदा इधर आओ बेटा। ये बाबूजी, ये देखो। हाँ, ये अच्छा ये है। वाला अच्छा मेरा भाई, ये पहनेगा तो अच्छा भी लगेगा। यार बैठ जाए, आप बैठ के बात करें, बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात करें। अब बिक्री होगी, बड़ी होगी यार अच्छा जी बताएं ना, आप लंडा खरीदने आई हाँ हैं, जी। किस तरह के कपड़े चाहिए आपको? बाजी छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ। सर्दियां अचानक ही तेज हो गई हैं, बहुत ज्यादा रात को ठंड हो जाती है, तो मैंने कहा चलो लंडे में से जाके बच्चों को 2-2 3-3 स्वेटर ला के दे देती हूँ। आप यकीन करें जुनैद साहब, 6-6 700 रुपए के इतने स्वेटर है। अब बंदा बताए कि इससे तो 19-20 का फर्क है, बंदा इससे तो बेहतर है बंदा गारमेंट वाले से जाके खरीद ले, बड़ी दुकान से खरीद ले। मासी बिल्कुल ठीक कह रही है बाबूजी, जो चीज 10 रुपए 20 रुपए की मिलती थी वही 1500 की 1600 की लंडे से मिल रही हाँ है। जी। अच्छा जी, आप किस चक्कर में लंडा बाजार आ गई हैं? दरअसल बात ये जुनैद साहब, ज्यादातर बड़े स्टोर जितने भी हैं वो इन्हीं से माल खरीदते हैं, इन्हीं से माल खरीद के ड्राई क्लीन करा कर बड़े बड़े ब्रांडेड के ठप्पे लगा के हैंगर में लटका के 20-20 25-25 हजार का बेचते हैं। तो मैंने सोचा कि वहां से जो खरीदना है क्यों ना 1000-1500 का इनसे खरीद के ड्राई क्लीन करा कर पहना जाए, पता भी नहीं चलेगा। ओ खाजी 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया। एक मिनट ठहर जाए, अभी सोने से पहले तो आप 100 रुपए कह रहे थे। वो ख्वाब में शौकन तरीन आई है, वो कहते हैं कि बढ़ा दो रेट। 200 रुपया 200 रुपया। एक मिनट सर, सादा काम खराब कर हुए 500 रुपए 500 रुपए 1000 देते रहे, 1000 ਬਾਬੂਜੀ, देते रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ, ਐਸੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। साइज तो देख लो उसको। हाँ, इसकी वेस्ट खुली है भाई। वहाँ छोड़ दो इधर आओ मेरे पास, इधर ना, ना, आओ। ना। जी खान तुम भाई। पढ़ा लिखी आदमी है, ये जैकेट उतारो जरा, उतारो, तुमको भी बताती है। ये देखो ओ खान मेरा गाजी, इस तरह का पीस तुमको इधर जैकेट किधर है? मेरी बात करो। इधर दो, ये जरा पकड़ो, पहन के देखो कितनी अच्छी लगेगी। कितनी अच्छी लगेगी। पुल्लू का पुल्लू का पुल्लू का ओ पोलो होता है भाई, पोलो। वही पुल्लू। ये देखो, मैं बड़ा खान। कोई बात नहीं, जो एक भाई और है, हाँ। उसको भी इसमें घुसाओ, मौज करो। वो वाला जैकेट तो दो। ये छोड़ दो 100 रुपया 100 रुपया। एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। वो नहीं यार, इसको ये खुला लग रही थी, वो फिट आ गई है। और मैं घर से पहन के आऊं, मेरी अम्मी मुझे घर नहीं जाए गुजरने। ਇਹ ਬਲੈਕ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬੂਜੀ, ਬਲੈਕ ਪੈਂਟ और नहीं वो मेरा कोट दो मुझे। ये वाली ये तुम्हारी वाला है, हाँ। तो वो मेरी वाला नहीं तुमने लिया। उसकी एक जेब में चलगोजा भी है, इस तरह इसकी कीमत जो है कुछ 11,500 रुपए बनती है। वो एक मिनट ठहरो, ये तो तुम्हारी है, इसमें तो ये भी है, वो इसने तो मैसेजिंग भी की हुई है। आज घर आओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वो शादीशुदा है। और शादीशुदा है तो ये मैसेज किया है ना, गैर शादीशुदा होता तो कौन करती है मैसेज?
100 रुपया 100 रुपया 1000 देते रहे, 1000 देते रहे, 1000 देते रहे। खान साहब मेरी बात सुने, मैंने 4 स्वेटर लेने और आपको 300 देना बस। और ये कैसे 100 का तो एक स्वेटर है, तो 300 में तो हमको वारा ही निकाती है, कोई चोरी का माल तोड़ रही है। देखो बाजी, अगर आपने लेने आया तो ना तुम्हारा बात ना हमारा बात, 300 नहीं होएगा तो 250 से कम मैंने नहीं लेना। 250 देते अल्लाह मुकरना जावे। हाँ ये खान साहब मैं आपको पागला गलत दसन ने 250 घाटे। तो हमको इतना बेवकूफ नहीं समझो, हमको पता 250 का कितना होती है। एक 100 का नोट और एक 50 का नोट, इससे कम हमने नहीं लेनी है। यार डू नोट 100 दे, हिक 50 दे। तो हमको पागल नहीं बनाओ, हम अपने भाई से पूछ लेगा अभी। ओ ये क्या मैसेज आई हुई है, जाकिर खान गाराओगे तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। तुम्हारे भी खान साहब यही मैसेज है। वो ये मैसेज वायरल हुआ ये दिखो तुम्हारे फोन में, तुम्हारे फोन से तो इशू हुआ होगा। और मेरा बहन अगर खरीदना है तो जल्दी जल्दी खरीद लो, हमने घर जाना है। पलविशा बड़ी सख्त खातून है, उसने तो बगैर लाइसेंस के डजा भी रखा हुआ है। सही रखो है, तो डसे दिगाल थी नहीं पई है, मैं अगले चौक से बेच गिंदा। जा राश कर। खान साहब ये रेड रंग का जो स्वेटर है वो कितने का ये है? वाला, हाँ जी। ये तो आपका, ये अब इतना अच्छा स्वेटर आपको कहीं नहीं, नहीं। ये तो मेरे वाला था। तुम किस तरह इसमें घुसा है? तो हो ही दिया तूने। वाह, उतारो। 100 देता है तुमको। उतारो। 100 देगा। 100 दो इधर फिर। देता है वो अभी। ये 200 रुपए का है। हाँ 200 था। 200 से कम मैंने नहीं देना, उतारो। नहीं खान, तुम्हारा तो रेट स्टॉक एक्सचेंज से भी जल्दी बढ़ता है। वो नहीं 100 रुपया जो है, 100 रुपया अभी दिखाते हैं। ये ये देखो, खान साहब मैंने ले लिए। ये वाला। तुमने वो लिया। देखो मेरा बात सुनो, 500 में ठीक है आप ले। 500 में आप ले। आपकी मेरी बात हुई, 300 में 4। देखो फिल्म स्टार का रेट हमारा एक ही है, 500 रुपया। कमाल है, बहन भी बोलता है बहन के साथ रहत भी नहीं वो करता। देखो बाजी, ये 500 रुपया का फिल्म स्टार को सस्ता पड़ती है। वो बहुत अच्छी है ये, अगर तुम पहन के जब कहेगी ना कैमरे के आगे, सलीम मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जबरदस्त। ये और मैंने सलीम कहा है, जुनैद सलीम नहीं कहा। ये पहन के मैं सलीम को बोलूंगी। वो बड़ा अच्छा ब्रांडेड है, ब्रांडेड आडिडास का है, आडिडास का। आदिवासी भी ये- आप मुझे दे दे, मैं इसको काट के अपने बच्चों का सूट नहीं नहीं ये मैंने लिया है खान साहब। खाना दुकान तेरी यार। लड़ाई झगड़ा नहीं करो, ना तुम्हारा ना तुम्हारा, छोड़ दो। लो तुम 700 रुपया दो, 700। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ। वो इन लोगों के लिए है। तुम जब इस स्वेटर में घुसेगा और इस स्वेटर को जो तकलीफ होएगा उसका चार्जेस नहीं लेना तुम। ऑटोमेटिक ले आके सामान चावल वास्ते। हम थोड़ी मस्जिद किधर है? मस्जिद अब मस्जिद तो करीब है लेकिन किसी नमाज का टाइम नहीं है। यार छोड़ो, ये बताओ है किधर मस्जिद? ਉਹ ਖਾਨ दौड़ो यार, मेरे तो देखिए 2 पर्चे हुए पहले। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जहाँ पे हमसाए या मोहल्लेदार जो हैं वो एक दूसरे के ज़ाती मामलात में हद से ज़्यादा दखील होते हैं, वहाँ पे जो है वो मामलात अक्सर व बेशतर खराबी की सूरत में मुंतज होते हैं। अच्छा भाईजान, कुछ अर्सा पहले हमने एक मौजू पे तबादला ख्याल किया था कि हमारे यहाँ बड़े शहरों में एक सर्वे के हवाले से हमने बात की थी कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में हमसायों के आपस में जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो अपनी सबसे निचली सतह को छू रहे हैं, एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है। और एक हमने उस वक्त भी उस शो में भी हमने जिक्र किया था कि एक दूसरी इंतहा भी है जो पाकिस्तान में कई शहरों में, बल्कि अगर छोटे शहरों में कहा जाए गली मोहल्लों में पाई जाती है, वो है कि एक दूसरे को हद से ज्यादा जानना। ये अगर हर वक्त जानने की कोशिश करते रहना। है कौन इन्ना दे? ए पहली बार नहीं आया। तो मशकूक बंदा महल्ले में आता है तो उसको तो चेक करो, वरना अपने मुंह ध्यान जिंदगी गुजारो यार। अच्छा, इस हवाले से हमारे पास कोई सर्वे तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा एक अमूमी मुशाहिदा है कि जहाँ पे हमसाए या मोहल्लेदार जो हैं वो एक दूसरे के ज़ाती मामलात में हद से ज़्यादा दखील होते हैं, वहाँ पे जो है वो मामलात अक्सर व बेशतर खराबी की सूरत में मुंतज होते हैं। हाँ जी। तो
आपने देखा होगा कि अगर उन मामलात पे एक दफ़ा बात कर ली जाए, उनको सेटल कर लिया जाए, जो मसले या मामलात जो हैं वो हमसायों में लड़ाई का बायस बनते हैं, उनमें बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है, तांका झांकी जो है। मतलब तांका झांकी से मुराद ये है कि खाम खा की इन्वेस्टिगेशन, अगले का कोई ऐब ढूंढना या कोई ऐसी बात ढूंढना कि वो बैठ के डिस्कस की जाए, ये गुनाह है यार। नहीं, पर्दे के हवाले से भी तांका झांकी की बड़ी एक यानी होती है कि तो आपने मेरे घर में क्यों झांका, वो कहते हैं तुमने मेरे घर में क्यों झांका, हालांकि मतलब कई दहाइयों से इकट्ठे रह रहे होते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन जब आपस में एक मुखासमत शुरू हो जाती है, दिलों में नफरत का बीज जो है वो जड़ पकड़ना शुरू हो जाता है, तो फिर वही जो रूटीन की बात है वो आपको तांका झांकी लगने लग जाती है। तुमने क्यों इधर देखा है, अब हम ऐसे बैठे थे वैसे बैठे, कुछ भी कह देते हैं। इस पर बात करने का मकसद यही है कि जो हमसायों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, अगर उन तमाम मामलात पर एक दफ़ा उसको सेटल कर लिया जाए, उन पर बात कर ली जाए, उन मसाइल को ख़त्म कर लिया जाए, तय कर लिया जाए, तो कोई यानी एक अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए, मिसाक कर लिया जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि लड़ाइयाँ जो उनकी शिद्दत में कमी वाक़ई हो सकती है। एक बार दूसरी जो बड़ी वजह है ताका झांकी के बाद वो ये होती है कि मोहल्ले में कोई ना कोई घरों के बाहर रुकावट ऐसी खड़ी की जाती है, तामीरात ऐसी हो जाती हैं, थड़ा आगे की तरफ निकाल लिया है, इस पे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, रुकावट लोगों की रजामंदी की आप अपने दरवाजे के आगे स्पीड ब्रेकर बना लिए जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें वाकई छोटी छोटी बातें हैं जो वो फौरी तौर पे जो है वो दूसरे गली वाले तो सारी उम्र की तकलीफ है। हाँ हाँ, और वैसे ना भी तकलीफ हो रही हो, लेकिन उन्होंने ये फतवा जरूर देना होता है कि जनाब मेरा रास्ता रोक लिया है आपने, हालांकि उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं, सवारी नहीं होती जिसकी वजह से उसका कोई रास्ता रुक जाए, लेकिन उसने फतवा जरूर सादर कर देना होता है। लेकिन बनाने वाले का भी मेरा ख्याल फर्ज है कि वो ना नाजायज तजावजात करे, अगर आपने कोई करनी है तो अपने जो हिस्सा है आपका उस पे बनाए। आमतौर पे वो लोग जो है वो बाइक चढ़ाने के लिए छोटे मोहल्लों में आपने देखा होगा क्योंकि स्लोप्स ही बनाते हैं, तो जब स्लोप बनाते हैं तो हम सारे एतराज करते हैं कि ये मेरे घर में मेरे रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है, क्यारी बना लेते हैं, बड़ी बड़ी क्यारियां बना लेते हैं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी रुकावट आती है, इस पर भी बात की जाती है। अक्सर घरों में बाबूजी बारिशों के दिनों में लड़ाइयाँ होती हैं, मानसून की लड़ाइयाँ। जी आपने सही कहा, मानसून की लड़ाइयाँ, क्योंकि पहले मानसून की मिठाइयाँ होती थी, अब मानसून की लड़ाइयाँ, गुलगुले निकलते थे, पूड़े निकलते थे मीठे, और साथ फीकी खीर होती थी। ये देखो आपकी हमसायगी से निकल के होटल की तरफ बाहर लेके जा रहे हैं। उसके तो तबीयत का टॉपिक छेड़ दिया है गौरी ने। हाँ, बाकी गली में पानी अगर खड़ा होता है तो कुछ लोग अपनी साइड ऊंची कर लेते हैं, वो पानी और ज्यादा दूसरों के घर में घुस रहा है या दूसरे की साइड पे जा रहा है। इस तरह के मामला वाकई होते हैं, और कुछ लोग जो हैं उन्होंने छत से पानी का जो निकास है वो इतना बुरा बनाया होता है कि हम साए तंग हो रहे होते हैं या गुजरने वाला तंग हो रहे एक और जो लड़ाई की वजह बनती है हमसायों में वो है कि अपने किसी एक घर में कोई कारोबारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उस बात पर बहुत ज्यादा एतराज होता है कि जनाब आपके घर में या वो फलां काम हो रहा है, उसकी वजह से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से गली में रश बढ़ गया है, उसकी वजह से फलां शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हमारे मुल्क की इक्तिसादी हालत देखी जाए तो जाहिर है कि तमाम जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो बहरहाल बहुत मुश्किल काम है कि उनको कमर्शियल जोन्स तक या कमर्शियल एरियाज तक महदूद रखा जाए। कई छोटे मोटे कारोबार गरीब लोग बेचारे शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो बात जो है वो कारोबार या एक्टिविटी जो है वो हमसायों के लिए बाइस ज़हमत ना बने, और अगर हो भी रही है तो हमसायों को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो जहन और दिल जो है खुला कर लें। अगर मजबूरी है, अगर उनकी तो चलो थोड़ा कॉपरेट कर लें। असल में तो बात यह है कि आप कोई भी काम हो रहा हो, आप अपने अंदर से पूछेंगे ना अच्छा क्या है या बुरा क्या है, उसका जवाब आपको मिल जाता है। बिल्कुल। हाँ, अगर आप झूठी अनाओं के लिबादे ओढ़ लें या अपनी ख्वाहिशात को ज्यादा तरजीह दें तो फिर लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने की कोशिश करनी चाहिए। आओ जी, त्योहारों पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, गोश्त ना जाए गोगे के घर लड़ाई शुरू। लड़ाई नहीं मतलब तो फसाद शुरू हो जाता है। ईद शबरात को मिठे दी प्लेट ना भेजे, लड़ाई शुरू। बाजी बड़ी ईद पे कोई जानवर ले आए तो हम साहब कहते हैं कि आपने जानवर हमारे दरवाजे के आगे बांध दिया, इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, मसाया दी भी तुसी जानवर जेड़ा वो अपने च खिलार लिया करो, ना पता लगे जानवर आया है, ना पता लगे कि कोई जगह घेरी गई है।
बर्दाश्त करना चाहिए, 10 दिन का तो मेहमान होता है। बर्दाश्त ठीक है करना चाहिए, मगर दूसरे लोग अगर डर रहे हैं आपके जानवर से और आप उनके दरवाजे के आगे बंद आए हैं तो क्यों? यार इस बेचारे की मजबूरी ये है कि जब भी कुर्बानी का जानवर लेके आता है ना घर अपने और अपने घर के सामने बांधता है तो उसकी पहली नजर इस पे पड़ती है, वो रस्सा क्या संगल तोड़ा के दौड़ जाता है। बल्कि वो कितनी देर ये वेंदा रहता है कि इन्हें मैंने टक्कर मारनी है या मैं इन्हें मार दी। गोश्त तो लोगों ने देना ही है या गोगे ने लेना ही है, या जहां से गोश्त लेता है उनको कहता खल भी मिल दे दो। देखो और इन्नी जिद करता कि अगले ही खल लान नु फिरन डे सर एक लड़ाई इस बात पर भी होती है कि अगर डोंकी पंप चलाया है उसकी आवाज शोर होता है, फिर हमसाये एतराज करते हैं कि किसी और टाइम पे चलाएं। अब बिल्कुल ठीक बात है, डोंकी पंप ये जनरेटर की आवाज या कोई भी और मशीन ऐसी लगा। यार टेलीविजन लोग कई ऐसे ऊंचा आवाज लगाई होती है कि लोग डिस्टर्ब होते हैं। आपको अपने हमसाये के आराम और सुकून का भी ख्याल रखना चाहिए। बात तो सिर्फ इतनी है, बेशक तुसी डोंकी पंप चलाओ, बेशक तुसी खुद डोंकी बन के ते गल्लां करो। अच्छा, एक और जो लड़ाई का मौजू बनता है मामला, वो होता है ये तकरीबात के मौके पे, और खास तौर पे उस वक्त जब आपने चारों तरफ के हमसायों को नहीं मदऊ किया होता शादी में और रोटी अच्छी पकाई हो और ऊपर से जुल्म ये किया हो कि खाना खुशबूदार और आला जायके वाला पकाया और तंबूर के घर के बाहर ही लगाया हो। फिर हमसाये को उसमें हर तरह के कीड़े नजर आते हैं कि जी रास्ता रोक लिया, और फिर जी बैंड बाजे वाले क्यों आए हैं, इतना शोर हो रहा है। तो जुल्म ही है ना जो तुसी हलवे च ज़ाफ़रान भी पाया है तो तन हमसाया भी नजर नहीं आया तो ना तो फिर बनता है ना बाहर आके ज़हर अफान कटे। फिर गोगे का पता अपने बच्चे को पड़ता है, तेरी वजह से लड़ाई हुई है, तेरी वजह से लड़ाई हुई। बच्चों से याद आया, बच्चों की लड़ाई बहुत बड़ा मसला है। ये हमसायों की बहुत सारी लड़ाइयाँ बच्चों की बामी लड़ाइयों से शुरू होती है। इस पर कई दफा बुरी बात भी कर चुके हैं। बच्चे थोड़ी सी बात आपस में होती है, हम इज्जत का मसला बना लेते हैं। बजाय ये कि बच्चों को ये बावर करवाएं कि ये लड़ने की बात नहीं है, आपस में मत लड़ो। सीधी बात है, जब दिल मिले हुए ना हो, कोई भी रंजिश या उसका बीज मौजूद हो, फिर आप बहाने ढूंढते हैं लड़ने के। और उन लड़ने के बहानों में एक है कि अगर कोई हमसाया रात देर से आता है और हॉर्न बजाता है गाड़ी या बाइक का जी, या दरवाजा खटखटाता है, तो वो साथ वाला जो है वो फिर खाम खा उठ के आ जाता है, यार होली नहीं खड़का सकता, की मौत पै गई रात 12 बजे। और ठीक, उसकी बात ठीक भी होती है, आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। नहीं तो तुम आगे से क्या करो भाई जी, खड़कान होली डे खोलने नहीं डे होता है ना बंदा टिक 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 का ख्याल रखता है, अंदर छिड़ो पर आप पिटोल गया, अरे यो से खड़काएं तो एकदम डर जाते हैं, अब्बा जी आए भाई। अच्छा कहो गया कि महल्ले में लड़ाई अनोखी है, वो क्या जी? गली छोटी है, जो भी गुजर रहे आवे अगला कहता यार फिर असी अंदर टुर जाइए, तू लंघ ले। अच्छा, गुजरता भी ये चिल्टन एक्सप्रेस की तरफ 1.25 घंटे में। और माशाल्लाह एडा चौड़ा है, गली एडी निकी है कि नाल सुई गैस दे मीटर भी ध्रू शुरू के लाए ना को कार ना कोठी है भी चौड़ा है फिरदा है। जब गली पार कर लेता है तो गले में सुई गैस के मीटरों का हार होता है। सर जी, कूड़े पे लड़ाइयाँ होती हैं, अपने घर के आगे नहीं फेंकते, अगले के घर के आगे फेंक देते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ जी, ये तो खैर बहुत ही बेवकूफों वाली बात है। डस्टबिन का रवाज अब तो पड़ जाना चाहिए, कितने को की आती है नहीं डस्टबिन, तो कोई और टूटा भजा पीपा डब्बा कोई रख लें, कोई चीज रख लें, रंग वाली बाल्टी रख लें। गली के अंदर तो फेंकना कूड़ा या किसी के दरवाजे के आगे, या बुरी बात, ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये बाकायदा गुनाह है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। तंदूर जो है वो लकड़ी पे चलते हैं, गैस का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपने खाम खा रेट बढ़ाया हुआ है। ओ भाई, पूरी फैमिली के लिए इक्को रोटी खरीदने वाले। और बस करो, ऐसे ना उसको जुगते लगाओ, उसके बगैर तुम रोटी उतार नहीं सकते तंदूर में से। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के सलामती कटहरे में खड़ा है एक नान भाई। ना भाई साहब, नान भाई नहीं, मैं तो तंदूर वाला हूँ। वो नान भाई कहते हैं उसको यार। ठीक है, आप ही लोग कहते होंगे, लेकिन मैं तंदूर वाला हूँ भाई साहब। और भाई तंदूर वाले को नान भाई कहते हैं और हनान भाई कहते हैं। अच्छा, ये तंदूर वाले हैं भाई साहब? जी भाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये सबसे पहले जो
हल्की सी महंगाई की वबा का फायदा उठाता है ना, वो तंदूर वाला होता है। हल्की सी हमें वबा फैलती है ना जी, महंगाई महंगाई महंगाई, सबसे पहले इसने अपने रेट फौरन बढ़ा लेने। ये अफवाह पे रोटी का रेट बढ़ा देते। हाँ जी, हाँ जी। और वीर देखो गैस कहां तक पहुंच गई है। वो गैस पहुंचे कहां तक या आटा पहुंचे कहां तक, कुछ भी हो, कोई किसी यार सोना महंगा हो ये रोटी महंगी कर ले, पेट्रोल महंगा हो इन्होंने रोटी महंगी कर लेनी, गैस महंगी हो इन्होंने रोटी महंगी कर लेनी, कोई चीज महंगी हो इन्हें फौरी तौर पे ना रोटी का रेट बढ़ा ले। आटा महंगा हुआ, तुम लोगों ने रोटी महंगी की, समझ में। अब आटा सस्ता हो गया, तुम लोगों ने रोटी नहीं सस्ती की। और वीर जब गैस नहीं आ रही तो लकड़े बाजार से लेकर आनी पड़ती हैं, लिफाफे हम साथ दें, खुश्क लिफाफा और शॉपर भी साथ दें, तो फिर रोटी तो महंगी होगी। और भाई पाकिस्तान में 75% तंदूर जो है वो लकड़ी पे चलते हैं, गैस का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपने खाम खा रेट बढ़ाया हुआ है। और भाई पूरी फैमिली के लिए इक्को रोटी खरीदने वाले। और बस करो, ऐसे ना उसको झुकते लगाओ, उसके बगैर तुम रोटी उतार नहीं सकते तंदूर में से। वैसे मैंने ये देखा है कि जो रोटी की कीमत उतार जा रही है ना, इनका पेड़ा छोटा होता जा रहा है। चलो भाई रेट आपने बढ़ा लिया महंगाई की वजह से, वो पेड़ा क्यों छोटा करते जा रहे हो? उससे को क्रिकेट खेलते हो या उसको कहीं कंध के साथ कसाते रहते हो, वो क्यों छोटा करते जा रहे हो? रोटी इतनी पतली कर दी है कि आप आराम से रख के आर पार पढ़ भी सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 100 रोटी टिश्यू वाले डब्बे में रख सकते हैं बड़े आराम से। यार आप मुझसे ना खरीदे, आप जिस दुकान से भी खरीदेंगे आपको यही प्रॉब्लम होनी है भाई साहब। और भाई 100 ग्राम ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ 100 ग्राम ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ग्राम ਦੇ ਚ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। 100 ग्राम के हिसाब नाल उस बेचारे ने 6 किलो अपना आटा रखा होंगे। आप इतने जालिम लोग हैं कि आपने पेड़ा छोटा कर करके उसकी भूख का खाना खराब कर दिया। यार देखो कितना कमजोर हुआ वो। 6 किलो आटे 100 ग्राम के हिसाब से उसकी 60 रोटियां बनती है। 60 तो नहीं खाता ना यार, मैंने खुद देखा। बाबूजी, मैंने- 50-55 तक पहुंच के हफ जाता है ये। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। एक गरीब आदमी के साथ तो वाकई ऐसा जुल्म हो रहा है ये तंदूर वाले के हाथों कि ईमान से बड़ा तरस आना शुरू हो गया। गरीब बंदा बेचारा जहाँ पे मजदूर आदमी 2 रोटियां खा के तो उसका पेट भर जाता था, अब वो 6 रोटियां भी खाता है तो उसकी भूख नहीं मिटती। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब उसका मैदा बड़ा हो गया है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं ना। उसका मैदा बढ़ा नहीं हुआ, आपका मैदा बढ़ा हुआ है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब ऐसा खौफनाक ये वहां पे जुर्म करते हैं। कोई बच्चा आ जाए या कोई बेचारा बूढ़ा आ जाए ऐसा जो ना चेक कर सके रोटियां, पहले इन्होंने को 60-70 रोटियां लगा के रखी होती हैं। अगर कोई 5 रोटियां मांगता है, 2 गरम या 3 गरम बीच में से 2 ठंडी डाल के तो दे देती। अल्लाह खैर करे, मीदे ने कभी ये काम नहीं करा मेरे मुझे भाई साहब। बोलने का कोई हक तो नहीं, अफसर बैठे हुए हैं लेकिन हम उधर चौक में होते हैं। बाबूजी ये कच्ची रोटियां देते हैं, जब रश ज्यादा होता ना तो कच्ची रोटियां पकड़ाई जाती और वीर हैं। जो बंदा कहता है ना कि मदरी रोटी लगा के दो, मदरी से ऐसी बात है थोड़ी सी कच्ची भी हो जाती है, तो खैर इसमें कोई वजह तो नहीं है। और सबसे जो बुरी चीज अल्लाह माफ करे लगती है इनकी, मुझे तो 3-3 4-4 महीने के लगता है नहाए नहीं हुए। ओए होए, पसीनो पसीनी गर्मियों में हुए होते हैं, उसी तरह पसीना साफ कर रहे होते हैं, उन्हीं हाथों से रोटी पका रहे रोटी पकाना भी चलो गवारा है, जब ये लोग नान या कुलचा लगा रहे होते हैं तो रख के उसके ऊपर जब नाखून मार रहे होते हैं, वो जो जुल्म कबीर कमा रहे होते हैं। और वीर हम यूं उंगलियां नहीं मारते, हमने सांचा बनाया हुआ है। तुमने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है और कुछ नहीं बनाया हुआ। पेड़े तुम्हारे मक्खियों से भरे होते हैं, एक टाकी तुम्हारी होती है ऊपर पड़ी हुई गिल्ली करके, और वो टाकी भी जब आप उठा लेते हैं आपको पता ही नहीं होता दोबारा उसको ऊपर रखना है। आपकी दुकान का मंजर देख के बाकायदा ये फील होता है कि आपके जहन में ही नहीं है कि ये सारा कुछ इंसानों ने खाना है। वहां पे बकरों का को खाना पड़ा हुआ लग रहा होता है या जानवरों का को खुराक पड़ी हुई लग रही होती है। ये तो बाहर का मंजर है ना। अगर आप दुकान के अंदर चले जाएं जहां इन्होंने आटे वाली बोरी रखी होती है, उसका तवाफ जो एडे एडे बड़े चूहे कर रहे होते हैं, और जो सुंडियां और पत्ती अजीब अजीब, यार ईमान से दिल ही खराब कर देते हैं ये लोग। तो मैं हैरान होता हूं कि इनको जरा एहसास नहीं है कि ये रिज़्क है, ये खुराक है, ये लोगों ने खाना है, उनकी सेहत का ख्याल भी रखना है हमने। चलो कारोबार तो साथ कर ही रहे हैं,
मगर इनका हराम हलाल तो यही है ना हाँ जी। जी। बिल्कुल और दुकान की बदबू खत्म करने के लिए एक कदी अगरबत्ती भी अंदर पखा लेते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल पता चले जी बड़ियां खुशबुआं इतने फैली हैं। और वीर चलकर मेरी दुकान पर देखो, ये बड़ा बड़ा लिखवाया हुआ सफाई निस्फ ईमान है। काश उस पर तुम अमल भी कर लो। और बाबू जी आपको क्या पता हो, आपने कभी गाड़ी से उतर के रोटी ली है? और भाई जो तुम्हारे सामने खड़े होते हैं तुम उनको होश नहीं आने देते। कोई मिस्सी रोटी लगवाने आ जाए, कीमे वाला नान लगवाने आ जाए, उनसे बातें बातें करके सर जी वो पेड़े साइड पे कर लेते हैं। बिल्कुल, बाहर से कोई अगर अपना आटा कीमा वगैरह लेके जाता है ना जी इनसे रोटी लगवाने के लिए, कीमे वाली या मिस्सी रोटी, ये बिल्कुल उनका मटेरियल जो है बड़े अडोल से ही पटे थले कर लेते हैं या इधर उधर कर लेते हैं, बल्कि कह भी लेते हैं कि ये 2 रोटियां इसमें मेरी हैं। भाई तुम्हारी क्यों है, पैसे लो और काम मुकाओ अपना। बाबूजी जो ये रोगनी नान के साथ ज्यादती करते हैं ना, यार रोगनी नान के साथ तो तुम भी बहुत ज्यादा और सुन तो लो बाबूजी जो मैं करना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਘਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇ। ओए हाय हाय। और वीर मेरे, अगर आपको इतना ही शौक है ना तो खुद अपना तंदूर खोल लो। आपकी बीवियां तो कह रही होती जाके तंदूर से रोटी ले आओ, मुझसे नहीं पकती। यही तो स्यापा है मेरे वीर। हम अगर इतने जोगे हों कि बीवी से कह के कारी रोटी पका दे और की चाहिए, ऐसी सेगमेंट ही क्यों करिए? इस सेगमेंट के करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जुनैद सलीम को तंदूर से रोटियां लेनी पड़ती। और मुझे कह रहे कि कभी गाड़ी से उतर के रोटियां ली। सारी जिंदगी हो गई है बेचारे ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਢੋਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब बेटा मैं कभी गाड़ी में बैठे बैठे रोटी मंगवा भी लूं ना तो बेगम को पता चल जाता है कि गाड़ी से उतरे बगैर आई हुई है रोटियां। आलूओं वाला नान बाबूजी इनसे लेने ਓ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੰਦੂਰ ਆਪ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।